Hello dear students, in this video we are going to study about motion of charged particle in magnetic field. Basically, electric charges while moving in a magnetic field will experience a force. There is no such force on the charge which are at rest. That means first condition is when the charge particle moves in the magnetic field they experiences a force, and the expression for this force is given by Lorentz. There was a scientist जिनका नाम क्या था? Lorentz था. So according to Lorentz, whenever suppose this is the magnetic field acting from left to right and a charged particle is there, and this charged particle is positive charge particle. So experimentally he find the force on a positive charge particle, and suppose this charge particle is having a particular velocity v at an angle theta with the direction of magnetic field. Then this force experimentally he found that the force which is acting on the moving charge particle will be directly proportional to the charge, directly proportional to the velocity of the charge particle, directly proportional to the sine theta, where theta is angle between V and B, and it is also directly proportional to the magnetic field B. So while combining this expression, F will be equal to QVB sine theta. So this will be the formula to find the force acting on a moving charge in the magnetic field. As we can see that velocity and magnetic field both are vector quantity and they are multiplied with sine theta. So in vector form, this force can be written as Q V vector cross B vector. So this will be the force acting on the charge moving in the electric field at an angle theta. Suppose if that moving charge, जो भी हमारा moving charge है, उसके ऊपर क्या हो, उसके ऊपर दोनों field लग रही हो, electric field and magnetic field. So that force is called Lorentz force. So what is Lorentz force? Lorentz force is basically the total force experienced by a charged particle moving in the region where both electric and magnetic field exist. Electric and magnetic field exists. तो सिंपल सी बात कि अगर अब हम देखें तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा करती है वो फोर्स क्या हुआ करती थी बेटा? QE वेक्टर. दिस इज इक्वेशन 1.
एंड अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली जो हमारी फोर्स होती है वो फोर्स होगी v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. If we'll combine these two, this is suppose force due to electric field and this is suppose force due to magnetic field. So total force, and this force is called Lorentz force. Lorentz force. So F will be equal to Fp plus Fe. So what is Fb? Fb is Q V vector cross B vector plus what is E? Force due to electric field is QE vector. If I'll take Q as common, so here I can get the expression as V vector cross B vector plus E. And this force is called Lorentz force. So suppose if no electric field exists, if no electric field exists, what does this mean? This means F will be equal to Q V vector cross B vector. If no magnetic field exists, so the term B will become 0, and if B becomes 0, so F will be equal to Lorentz force will be equal to QE vector. So Lorentz force is basically the combination of the force acting due to electric field and the force acting due to magnetic field. So after getting this expression, simple सी बात, this force is basically a vector quantity and it must have some direction. So to find its direction, we have one rule which we had already studied in class 10th, and that rule is Fleming left hand rule. This rule indicates if we'll place our thumb, index finger and second finger uh, at the perpendicular to each other, then if forefinger represents the direction of the field, and forefinger is representing the direction of the field, second finger represents the current. Current means basically it is the velocity of the charge particle. जिस भी direction में हमारा charge particle move कर रहा होगा, और वो भी कौन सा charge particle? Velocity of the positive charge particle. ये बात ध्यान रखनी है बेटा. तो सिंपल सी बात ये है कि करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो जिस भी डायरेक्शन में हमारा चार्ज फ्लो हो रहा होगा, दैट इज दी उसी डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी होगी. तो करंट क्या होता है? करंट इज बेसिकली जो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है. कन्वेंशनल करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही देखते हैं बेटा हम लोग अपने सर्किट में. तो सिंपल सी बात कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की बात है, तो चाहे आप उसको करंट बोलिए या जिस भी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की, आप वो वेलोसिटी की डायरेक्शन अज्यूम कीजिए. दोनों एक ही चीज है. तो सिंपल सी बात कि ये कि आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको अपनी इंडेक्स फिंगर प्लेस करनी है. आपको मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और वो भी चार्ज पार्टिकल कैसा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. सर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा. इन दैट केस यू हैव टू रिवर्स इट्स डायरेक्शन, कि जिस भी डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा. तो अगर नेगेटिव चार्ज की बात होगी तो इस सेकंड फिंगर को आपको क्या काम करना है? सेकंड फिंगर को जस्ट उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको प्लेस करना है. तो जो थंब होगा, दिस थंब विल बेसिकली गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. हम इसको मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं. किसको किसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं? क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं. तो आपको कुछ नहीं करना है. You have to place all three fingers, thumb, forefinger and second finger mutually perpendicular to each other, and place your index finger in the direction of magnetic field. Place your second finger in the direction of velocity of the positive charge particle or in the direction of current. Then the thumb will give you the direction of magnetic force, and the formula for it is Q V vector cross B vector. इतनी बात आपको ध्यान रखनी है. अब यहीं पर कुछ स्पेशल केसेस बन जाते हैं हमारे, कि अगर मान लीजिए सबसे पहला केस अगर हम डील करें, और वो केस है कि इफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
क्योंकि हमारे पास जो अब सब केसेस हैं वो सारे के सारे केसेस कैसे हैं, वो अब हमें पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो अब हमें उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है। कैसे प्लेस करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला केस, फर्स्ट केस, व्हेन the initial velocity the initial velocity is parallel to the direction of magnetic field. Now see, suppose this is the magnetic field and what we have assumed कि जो भी हमारा चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल हमने इसको अज्यूम कर लिया, इसको हमने Q मान लिया चार्ज पार्टिकल को, और ये हमारे पास B है, और यही हमारी डायरेक्शन किसकी हो गई, V की डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पर अब अगर हम लॉरेंट्ज फोर्स वाला फॉर्मूला यूज करें मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर ये क्यू वी बी साइन थीटा होगा, तो हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये हमने पहले ही देखा, एंगल बिटवीन V एंड B, V और B के बीच का एंगल है थीटा। तो हियर in this case it is 0 degree, and if it is 0 degree, that means Fm will be equal to QVB sin 0, और sin 0 का मतलब Fm कितना हो गया, Fm will be 0. that means no force acts on a particle, on a charged particle when its velocity is parallel to magnetic field. अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, तो उस केस में हमारा चार्ज पार्टिकल के ऊपर किसी भी तरीके की कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब नो फोर्स बोल दिया, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल will be uniform and positive charge particle will move in the direction of magnetic field, और अगर यही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल will move opposite to the direction of any charge particle will move in the direction of magnetic field, because magnetic field is not going to have any kind of role, किसी भी तरीके की कोई फोर्स नहीं लगाएगी। तो जो भी मेरा चार्ज पार्टिकल होगा, वो जिस भी डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी मिली होगी, अगर बी की डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी मिली है तो वो बी की डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर किसी और डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली है तो वो किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस द केस 2, and what is the second case? Second case is when the initial velocity is perpendicular to magnetic field, so in this case what we are doing is, I have taken the magnetic field into the board. This is indicating inward magnetic field.
and if I take a charged particle with velocity perpendicular to this field, what does this mean? Suppose this is my charged particle q, and suppose this is moving in this direction with velocity v. If it is moving in this direction, this shows that magnetic field is acting inward, whereas velocity is moving from left to right. That means this velocity is perpendicular to magnetic field. So Lorentz force कितनी हो जाएगी यहाँ पर? Fm will be equal to Q VB sin theta, which means Q VB sin 90. So Fm will be equal to QVB. So this will be the force which is acting on this particle, this charged particle. Now, if I want to see its motion, that how it is going to move, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अगर हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करें, लेफ्ट हैंड रूल, आप अपनी इंडेक्स फिंगर को पेपर के अंदर की तरफ पॉइंट कीजिए, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉइंट कीजिए, तो यू विल फाइंड जो भी आपकी फोर्स है वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होती हुई मिलेगी आपको? इस डायरेक्शन में। और जब ये इस डायरेक्शन में होगी तो इसी डायरेक्शन में मोशन होगा, यानी कि मेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। फिर से आप फोर्स निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ेंगे तो सपोज ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, यानी कि फिर से ये इनवर्ट डायरेक्शन में, और आगे बढ़े, यहाँ पर पहुंचे, तब भी यहाँ पर भी इनवर्ट डायरेक्शन में, और आगे बढ़े, आप यहाँ पर पहुंचे, तब भी आपको इनवर्ट डायरेक्शन ही मिलेगी, क्योंकि इस फोर्स की वजह से ये स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं, ये अपने पाथ से क्या होगा बेटा? डिविएट होता जाएगा, डिविएट होता जाएगा। हर जगह पर, हर इंस्टेंट पर फोर्स इसको कैसी लग रही होगी? इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। और अगर ये इनवर्ट डायरेक्शन में इसको हर जगह पर फोर्स लग रही होगी, तो ये फोर्स क्या करा? ये फोर्स कौन सी हो जाएगी? दिस फोर्स इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। दैट मींस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से हमें पता चला मोशन ऑफ फोर्स इज एक्टिंग इन दी at the center of the circular path achieved by the charge particle। इसका मतलब ये कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, इन दैट केस जो भी मेरा चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल will move in a uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर ये मूव करेगा तो मतलब जब कभी भी, अब हमें एक चीज पता चल गई कि जब कभी भी वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर हो गई मैग्नेटिक फील्ड के, उस केस में मेरा चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा? एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो ये हमारा एफएम हो गया। ये हर जगह पर हमें एफएम लगती हुई दिखाई दे रही है, एफएम लगती हुई दिखाई दे रही है। तो इस एफएम को बैलेंस कौन कर रहा होगा? इस एफएम को बैलेंस करने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो अगर मैं यहीं पर इस एफएम को सेंट्रीपिटल फोर्स से कंपेयर कर दूं, आर, तो दिस विल बी क्यू वी बी, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ऐसे ही लिख पाएंगे हम लोग। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो देखो v से v क्या हो गया? कैंसिल। तो r की जो वैल्यू मिली हमें वो कितनी मिल गई? एम वी अपॉन क्यू बी। मतलब जो भी मेरा चार्ज पार्टिकल होगा वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो कर रहा होगा और उस टाइम पे एक यूनिफॉर्म सर्कल बना रहा होगा। तो जो भी ये यूनिफॉर्म सर्कल बनाएगा उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी? तो सर्कल की रेडियस डिपेंड करेगी मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल के ऊपर, चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल के ऊपर, एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में आपने उसको प्लेस किया है। अब उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम ऑफ रेवोल्यूशन अगर मुझे निकालना हो तो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन क्या कहता है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है
तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख रहे हैं तो डिस्टेंस कितना होगा 2πr और स्पीड कितनी है v, यानी कि 2πr की जगह पर अगर मैं ये वैल्यू रख दूं mv अपॉन qb अपॉन v, तो v से v कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2πm अपॉन qb। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंगल रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन का जो हमारे को टाइम पीरियड मिलेगा वो 2πm अपॉन qb मिलेगा। एंड इस एक्सप्रेशन की सबसे खास बात यह है कि दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस किस से इंडिपेंडेंट है, v एंड r, वेलोसिटी से भी इंडिपेंडेंट है। किस वेलोसिटी से आप उसको मूव कराया, उसको इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी दे रखी थी, वो रेडियस कितने सर्कल का बनाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर ये जो मेरा चार्ज पार्टिकल है ये अगर छोटा सर्कल भी बना रहा होता तब भी उसको टाइम इतना ही लगता, एक बड़ा सर्कल बना रहा होगा तब भी इतना ही टाइम लगेगा, इससे भी बड़ा सर्कल अगर बनाएगा तब भी उसको टाइम इतना ही लगेगा। यानी कि ये जो हमारी टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड v और r के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज बाई मास के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो भी आपका चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल का मास और उसके ऊपर चार्ज कितना है और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। यहीं से अगर फ्रीक्वेंसी निकालने की बात करी जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, देखो तो फ्रीक्वेंसी विल बी f इज इक्वल टू 1/t, तो f विल बी इक्वल टू qb अपॉन 2πm. This will be the frequency of the charge particle moving in a magnetic field in its perpendicular direction. मतलब जब velocity और magnetic field एक दूसरे के perpendicular हैं उस केस में हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी qb अपॉन 2πm मिलेगी। तो हमें इतनी बात ध्यान रखनी है। अब यहीं पर तीसरा केस कि अगर मान लीजिए कि हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उस केस में हमारे चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो केस नंबर 3, थर्ड केस, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने क्या काम किया, सपोज हमने ये मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम कर ली और जो भी मेरा चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल पर v वेलोसिटी हमने प्रोवाइड कर दी। मतलब दिस इज माय चार्ज पार्टिकल, जिस चार्ज पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। इस डायरेक्शन में जो है, इस डायरेक्शन में ये है अपनी मैग्नेटिक फील्ड b, एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया थीटा। तो अब इस केस में इसका मोशन कैसा होगा। सिंपल सी बात, जब कभी भी मुझे वेलोसिटी थीटा एंगल पर दिखाई देती है तो मैं इसके दो कंपोनेंट्स अज्यूम कर लेता हूँ। एक है ये कंपोनेंट और ये कितना होगा v cos थीटा, और एक दूसरा कंपोनेंट है और वो कितना होगा v sin थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो v cos थीटा है, v cos थीटा जो हमें मिल रहा है, v cos थीटा इज बेसिकली पैरेलल टू b है, और v sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर टू b है। मतलब ये कि इस v sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और इसकी वजह से यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म मोशन दिखाई दे रहा होगा। मतलब अब आपको दो काम एक साथ करने हैं, आपको सर्कल भी बनाना है और यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर इसकी वजह से कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। मतलब यहाँ पर जो अभी हम दो केसेस पढ़कर आए हैं वो दोनों केसेस एक साथ इंक्लूड हो जाने चाहिए। तो अब देखो, जैसे मान लो ये मेरा अगर एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल को सर्कल में भी घूमना है और आगे भी बढ़ना है, तो कैसे घूम रहा होगा, ये कुछ ऐसे ही घूमेगा। देखो
आगे भी बढ़ रहा है, सर्कल भी बना रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, सर्कल भी बना रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, सर्कल भी बना रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, सर्कल भी बना रहा है। यानी कि यहां पर जो भी मेरा मोशन होगा वो मोशन मुझे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। मतलब ये बिल्कुल स्प्रिंग जैसा मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? अगर हम बिल्कुल लेमैन की तरह अगर हम समझना चाहते हैं तो ये स्प्रिंग जैसा मोशन होगा। तो ड्यू टू v cos थीटा परपेंडिकुलर टू b, इसकी वजह से हमें यूनिफॉर्म मोशन दिखाई देगा। और यहां पर अगर हम देखें तो v sin थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसकी वजह से हमें सर्कुलर मोशन दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो भी ये हमें पाथ मिलेगा वो पाथ कैसा होगा? वो पाथ हमारा इस तरीके के पाथ को, जो ये स्प्रिंग तरीके के पाथ, जो इस तरीके का पाथ होता है, इस पाथ को हम बोलते हैं द पाथ ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल will be हेलिकल और हेलेक्स शेप का होगा। ठीक। अब यहाँ पर भी हमें रेडियस निकालने की, जो भी हमारा सर्कुलर पाथ बना, सर्कुलर क्योंकि स्प्रिंग है तो वहां पर एक सर्कल बनेगा, जो भी सर्कल बनेगा उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। तो अगर मुझे यहाँ पर अब रेडियस निकालनी, तो रेडियस का फॉर्मूला तो हम पहले ही देख चुके हैं, और वो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था? mv अपॉन क्यूबी। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, विच वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल, ये देखना पड़ेगा हमें। विच वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल, तो कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? तो मुझे तो याद आ रही है, ऊपर लिखी भी है कि भैया यहाँ पर जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो v sin थीटा है। तो इस v sin थीटा को मैंने नाम दे दिया v परपेंडिकुलर, और v cos थीटा को मैंने नाम दे दिया v पैरेलल। तो यहाँ पर जो मुझे रेडियस लिखनी होगी वो रेडियस में कैसे लिखूंगा? v परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा ये v sin थीटा अपॉन क्यूबी। ये हमारी नया रेडियस हो जाएगी। मतलब अगर थीटा एंगल पर प्रोजेक्शन होगा तो सिंपल सी बात, ये mv sin थीटा अपॉन क्यूबी विल बी इट्स रेडियस। एक बार रेडियस आ गई तो अब टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा तो देखते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, सो दिस विल बी t इज इक्वल टू, सर्कल तो रेडियस तो उसकी 2 पाई आ रही होगी, किस वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है? तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर r की जगह पर अब हम क्या लिख रहे होंगे? 2 पाई mv sin थीटा अपॉन क्यूबी इंटू 1 अपॉन v sin थीटा। तो v sin थीटा से v sin थीटा क्या हो गया? कैंसिल। यानी कि यहाँ पर जो हमें टाइम पीरियड मिला वो कितना मिला? 2 पाई m अपॉन क्यूबी। ये हमारा टाइम पीरियड होगा सर्कुलर पाथ के रेवोल्यूशन का। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना हमारा परपेंडिकुलर वेलोसिटी के केस में लगता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये। ऑब्वियस सी बात, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद अगर मुझसे कोई फ्रीक्वेंसी पूछ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी मैं बता पाऊंगा 1 अपॉन टी, एंड दिस विल बी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब जो फ्रीक्वेंसी पहले आ रही थी हमारी, सिर्फ जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक फील्ड के, वही वेलोसिटी हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसमें एक नई चीज और होती है, एंड दैट इज कि जब ये हेलिकल पाथ फॉर्म करेगा, तो हेलिकल पाथ फॉर्म करेगा तो सिंपल सी बात, दो सर्कुलर पाथ के बीच में, इन दो सर्कल्स के बीच में जो ये डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेटा पिच। So we have to find this pitch, that is the linear distance traveled by the charged particle in the direction of magnetic field during its period of revolution. तो इसको हम क्या बोल देंगे? पिच क्या हुआ करती है? पिच इज the linear distance, linear distance traveled by the charged particle, the charged particle
in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field during its period of revolution, during its period of revolution, क्योंकि जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा उसी ड्यूरेशन में वो क्या काम कर रहा होगा, आगे भी बढ़ रहा होगा, तो उसी डिस्टेंस को, यही वो डिस्टेंस होगी और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो ये जो पिच वाली साइड का जो मोशन है, ये वाला जो मोशन था इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, तो ये मोशन तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन था। और अगर ये मोशन अपना यूनिफॉर्म मोशन है तो सिंपल सी बात, पिच को निकालना हो गया बहुत आसान, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला तो एक ही लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पिच विल बी इक्वल टू, पिच इज बेसिकली दी डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब पिच के लिए, ये लीनियर मोशन के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है वो है v परपेंडिकुलर। और टाइम तो भैया जितने टाइम ड्यूरेशन में हमारा सर्कुलर पाथ कंप्लीट हुआ था वही हमें यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन लिखना है, तो वो हमारा टाइम ड्यूरेशन कितना है, कैपिटल टी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और टाइम पीरियड हमारा क्या आया था, 2πm अपॉन क्यू बी, यही हमारा टाइम पीरियड आया था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2πmv cos थीटा अपॉन क्यू बी, और यही हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, पिच का फॉर्मूला हो गया। तो हमें पता चल गया कि हमारे जो भी केसेस थे वो 3 केसेस हमने आज पढ़े। कौन कौन से 3 केसेस, सबसे पहला केस, ये अब बिल्कुल अपने दिमाग में चीजें फिट कर लेनी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अगर मेरा कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ पर मेरा मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल सी बात। दूसरा केस, दिस वाज द फर्स्ट केस, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। केस 2, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई, मतलब कुछ ऐसे, ये कहीं पर भी आप वेलोसिटी बनाओ, देखो ये हर जगह हर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ट, और ये कहाँ मूव कर रहा है, ये प्लेन पर मूव कर रहा है। तो अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस केस में जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा, मतलब यहाँ पर v परपेंडिकुलर टू b है, यहाँ v पैरेलल टू b है। तो v परपेंडिकुलर टू b की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा पाथ होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, और वो भी कैसा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म। तो जो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उसकी हम लोगों ने रेडियस निकाली थी, और वो रेडियस हमने कितनी निकाली थी, mv अपॉन क्यू भी निकाली थी हमने रेडियस। यहाँ पर हमने टाइम पीरियड भी निकाला था, और टाइम पीरियड हमारा कितना आया था, 2πm अपॉन क्यू भी आया था। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा कर देंगे तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। केस नंबर 3 क्या था, केस नंबर 3 था कि जब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने अपना कोई भी चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पर मूव कराया है v वेलोसिटी से, तो सिंपल सी बात, यहाँ पर जो हमारा पाथ होगा वो हेलिकल होगा, और हेलिक्स शेप भी बोल सकते हैं, स्प्रिंग जैसा पाथ होगा। यहाँ पर भी हम लोगों ने रेडियस निकालने की कोशिश करी थी, और रेडियस हमारी mv sin थीटा अपॉन क्यू भी आई थी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं था, 2πm अपॉन क्यू बी ही हमारा टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी हमारा क्यू बी अपॉन 2πm है। और यहीं पर एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा, दैट इज पिच, दैट इज 2πmv cos थीटा अपॉन क्यू बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिच। तो हमें ये तीनों चीजें पता चल गई। सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो भी हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं बेटा, ये सब फॉर्मूले हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए डिराइव किए हैं। अगर यही नेगेटिव चार्ज होगा, अगर मान लो ये बोल देता दिस चार्ज इज माइनस क्यू, तो इसकी वेलोसिटी आप बिल्कुल अपोजिट ले रहे होते, इस डायरेक्शन में अज्यूम करेंगे आप। क्यों, क्योंकि आपका ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा,
ये आपने फॉर्मूला पॉजिटिव चार्ज के लिए डिराइव किया है। तो अगर किसी की भी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है, क्योंकि जो आपकी सेकंड फिंगर है, सेकंड फिंगर की सबसे बड़ी कंडीशन है कि वो जो फिंगर है उस फिंगर में करंट की डायरेक्शन में आपकी वो फिंगर होनी चाहिए। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो अगर मेरा नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट क्या होता है? करंट तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है जिस भी डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस चीज का आपको बिल्कुल खास ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज दिया गया है, उसकी जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी दी गई है, आप उसकी वेलोसिटी को तुरंत रिवर्स कर देंगे और रिवर्स करने के बाद ही आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने का तरीका तो सिंपल सी बात कि अगर पॉजिटिव चार्ज इस वाले केस में, कौन से वाले केस में? इस वाले केस में अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज के केस में आपको सर्कल दूसरा मिलेगा, ये वाला सर्कल मिल रहा होगा, क्योंकि अभी आपने वेलोसिटी इधर अज्यूम की है, नेगेटिव चार्ज होगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। अब जब आप अपने थंब को प्लेस करेंगे तो आपकी फोर्स नीचे की तरफ आएगी। देखो मैं आपको करके बताता हूँ कि अगर ये हमारी सपोज मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रखा सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज, ये रहा मेरा पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है इसको मैंने वेलोसिटी ये प्रोवाइड की v। तो देखो v हमारी इनवर्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारी चार्ज पार्टिकल है और वो भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो फोर्स आपको ऊपर की डायरेक्शन में दिखाई देगी। तो अगर ऊपर की डायरेक्शन में दिखाई देगी तो यहाँ पर जो भी आपका सर्कल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यही अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से सपोज इसको आपने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रखी है, आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट करना पड़ेगा। जब आप इसको ऑपोजिट करेंगे तो अब जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि इस केस में जो हमारा सर्कल बनेगा वो सर्कल इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आई आप लोगों को? आप ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा। जब आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे उससे इसकी फोर्स की डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करना है। लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है जिस भी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी आपको दी गई है उसकी डायरेक्शन को आपको बिल्कुल अपोजिट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी सेकंड फिंगर है वो सेकंड फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट में की जिस भी डायरेक्शन में आपका करंट है उस डायरेक्शन में आपको प्लेस करनी है। तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो जिस भी डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में कभी भी आपका करंट नहीं होता। करंट हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। तो नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है करंट मेरा राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको समझ में आ गया। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, आज हम लोगों ने मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड देखा है। और हमें तीनों केसेस बहुत अच्छे से समझ में आए हैं कि पहले वाले केस में यूनिफॉर्म मोशन होगा, दूसरे वाले केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तीसरे वाले केस में हेलिकल शेप होगा। कैसे आए ये सारे रिजल्ट, इस वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।